Jai Guruji, to start my satsang, always I say that when I'd gone to Guruji, I did not have life and I had a very strong intuition that I'll die at an early age. गुरुजी के पास गई और जब मत्था टेका तो सिर्फ गुरुजी को यही पहली बार बोला था कि गुरुजी, मेरे दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स चलती है, मैं कुछ अच्छा नहीं सोच पाती। तो गुरुजी ने कहा कोई गल नहीं, तू सत्संग सुनिया कर। सो हिज व्हाट ही टॉट मी वाज कि सत्संग सुनना है तूने। और मैंने बहुत सारे सत्संग सुने थे वहां पे संगत लगती थी और बीच में गुरुजी शब्द कीर्तन रुकवा के अपना सत्संग किसी ना किसी को शेयर करने के लिए बोलते थे। And I got an opportunity to listen to so many satsangs. And there was an uncle coming from Chandigarh. His son could not speak and could not hear about 18 years. And Guruji ne badam rogan diya tha, and he was able to hear after that. Then there was another lady who had come in front of Guruji, and she said, Guruji, mere bacche ko bless kar diyo. And then Guruji said, chal bas 10 sangat to bacche dani te hai nahi. So there were so many things happening in front of me. The episodes I'm relating to you are today are sakshat his things and episodes that happened in front of me, not that कि somebody told me या मैंने किसी के मुंह से सुने। एक और आंटी आती थी, उनके हस्बैंड को थैलेसीमिया की प्रॉब्लम थी और गुरुजी ने उनको बेटा ब्लेस करके दिया था, उसका नाम शिव रखा था। So these were certain things that were happening in front of me, and I knew कि 2005 was going to be a very bad year for me. Karma had to come, and I did not have life after that. It was mentioned in my astrological chart. And then Guruji had said कि जिंदगी का सबसे बुरा टाइम या तो चल रहा होता है तो आने वाला होता है, तो गुरुजी आपको घर से उठाते हैं। And I was one single soul that was picked up from home. गुरुजी पे जाती रही. For the first time when I saw him, I was very, I saw कि there was so much of positivity in Empire State and the aura was so strong that I knew that he had some power. उनको भगवान नहीं सोचा था, but I knew कि वो एक बहुत बड़े शक्ति है जो जिसके पास मैं आई हूँ. And I was very unwell to the core that जो संगत मुझे पहले जानती है, मैं बिल्कुल नहीं चल पाती थी. I was totally bedridden. And गुरुजी ने 1 साल मेरी परीक्षा ली और मैं दिल्ली के हर डॉक्टर पे धक्के खा चुकी थी, but I did not recover from my health issue. And जैसे ही मैं उठती थी, I had a collapsing feeling. I used to feel that I am dying and I'm collapsing. And once outside Empire State only, मेरे को लगा कि my end has come. And I said, गुरुजी मैं जा रही हूँ. गुरुजी ने कहा कोई गल नहीं, तू langar kha. And when I took langar, even then I did not recover. And then next week again I came to Guruji, and I was sitting in one corner and fighting for my life. I said, Guruji आपको पता है मैं मरने वाली हूँ, आप मेरे से बात नहीं करते, मेरे को ठीक नहीं करते, मैं डॉक्टर के पास धक्के खा चुकी हूँ. I was telepathically conversing with him because that time Guruji का हुक्म था जितने बैठे हो उधर से ही बात करनी है, मुंह से नहीं निकालना. But I said, Guruji, अगर आप मुझसे आज बात नहीं करोगे ना, मैं आपको कभी नहीं आऊंगी आपके पास. And I just stood up in the sangat and I told him, Guruji, या तो मुझे जानने दो या मुझे ठीक करो. तो he called me. He said, तू लोटा bless करा ले. गुरुजी ने मेरे को लोटा bless करके दिया. And I started using the lota. And I was so stupid thinking कि लोटा काम कर गया. And Guruji had instructed me, अधे नाल पी ले ते अधे नाल नहा ले. आज भी उसी श्रद्धा और विश्वास से लोग लोटा bless कराते हैं. But I'm sure Sangat ji, this is just an eye wash. Guruji की शक्ति और गुरुजी की पावर इतनी बढ़ चुकी है. As uncle had specified that मेरी फोटो अभी गलन करन गया, and today is the time. These are not his photographs. He himself sitting on the asan, and he used to say कि एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरी फोटो जब घोल घोल पियोगे तो अमृत बनोगा और उससे आपकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक होंगी. And we can just dip his pictures in normal water and give everybody, or we can put jal in front of him and then we can give it to everybody, and that becomes prasad. So that has healing powers. And इतना मतलब गुरुजी ने बताया. And then again I remember मैंने सोचा लोटा काम कर गया, पर गुरुजी अपनी जिंदगी से मुझे जिंदगी दे रहे थे कि उनकी शक्ति इतनी बड़ी है और इतने बड़े महाशिव ने मुझे अपनी जिंदगी से जिंदगी दी. I came in the sangat. He had told the date of my death. He said, आज तेरी 13वीं है कि जा ऐश कर कल्याण करा गया न्यू लाइफ. जो मैं आज हूँ वो मैं गुरुजी की कृपा और गुरुजी की दया से हूँ. And I can vouch for it that there is no God above him. There is no Shakti above him. And he is the ultimate power and the ultimate destination in our spiritual journey. I'll just connect to my one second, uncle, just to interrupt in the middle. I'm just getting my power bank. Sorry, there's a less battery. Sorry. Huh?
Please take your time. just a second, let me just not की disconnect ना हो जाए. हाँ जी. And then मैं गुरुजी के पास जाती रही, and I could know that Guruji had blessed me with new life. And then there were certain episodes, and आज जैसे आज का है कि गुरुजी के वचन, तो गुरुजी ने over a period of time जो मुझे समझाया, what I'm relating to you today are not that कि मैंने किसी से सुना. एक आंटी, गुरुजी was anti astrology. गुरुजी हमेशा कहते थे पंडिता को जान के ਤੁਹਾਡਾ कदे कल्याण नहीं हो सकता. अपना पाठ खुद करो, किसी से अपना पाठ मत कराओ, क्योंकि किसी में इतनी पावर नहीं है कि वो पाठ कर सके, और वो तो अपना कल्याण करा रहा है अगर वो पाठ कर रहा है. देन ही यूज्ड टू से चलते फिरते उठते बैठते तुसी पाठ कर सकते हो. जो मंत्र जाप गुरुजी ने दिया, कहते थे अंदर अंदर पाठ चलना चाहिए. लेफ्ट एक राइट जो साइड में आपके बैठा है उसको भी नहीं पता चले कि आप पाठ कर रहे हो अंदर. किसी को गुप्त पाठ गुरुजी इंसिस्टेड ऑन, गुप्त सेवा. And for Kalyug period, he said, ये मंत्र जाप ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय इज अ महामंत्र. एक डेड बॉडी भी इससे अलाइव हो सकती है. एंड उन्होंने किसी बंधन या रिचुअल में नहीं बांधा का था कि सुबह उठ के हमें अगरबत्ती जलानी है, धूप जलानी है, या हमें नहा धो के ये पाठ करना है. गुरुजी कहते थे अंदर ही अंदर पाठ करो, मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा. और मैंने अपने घर में देखा है कि माय रियल मामा जी वाज अनवेल, एंड दिस कंटिन्यूअस मंत्र जाप रिवाइव्ड हिम. he is no more now, but गुरुजी ने उनको 2 साल लाइफ एक्सटेंशन दी थी. एंड देन गुरुजी यूज्ड टू से कि वॉशरूम में भी आप पाठ कर सकते हो. देयर इज नो प्लेस वेयर यू कैन नॉट डू पाठ. इवन ऑन गुरुजी यूज्ड टू से मैनू याद रखो, एट द बैक ऑफ योर माइंड यू शुड रिमेंबर हिम. गुरुजी इज रसक बैरागी गुरु, रसों में रह के बैराग उन्होंने सिखाया. ही यूज्ड टू से कि तुम सारी जिंदगी की enjoy every aspect of your life. in मूवीज देखो, पिक्चर देखो. गुरुजी खुद होटल्स में लोगों को लेके जाते थे, आंटीज को बोलते थे, ही टोल्ड कृष्णा देवी जा कृष्णा दीदी कि तू जा फेशियल करा के आ, जा तू चंगे कपड़े पा. सो गुरुजी वाज नेवर एंटी एनीथिंग. ही यूज्ड टू से एंजॉय योर लाइफ एंड इंटरनली यू just be connected to God. That is what he taught us कि जोत अंदर जलानी है, बाहर दिखावा या प्रिटेंस नहीं करनी कि हम पूजा पाठ करें, हम मंदिर जा रहे हैं. And this pandemic we cannot go to the बड़ा मंदिर, we cannot go to सत्संग्स. बट जब हर घर में गुरुजी का स्थान है, हर घर में गुरुजी का आसन है, और दिल में जब भगवान बैठ गया तो आपको बाहर भटकने की भी जरूरत नहीं है. This is what he's taught us. And then again another episode I remember, there was an auntie, Guruji, she was into Buddhism chanting, and Guruji had told her to stop chanting. She said, "Putte ka munde ne." Not that chanting is something which is bad, but he used to say कि किसी की प्रेयर करने की तुम्हारे पास कोई क्षमता नहीं है, क्योंकि तुम इंसान की जूनी में हो और तुम्हारा कोई कल्याण नहीं कर सकता, सिर्फ एक मॉरल सपोर्ट तुम्हें दे सकता है. अगर कोई अपनी प्रॉब्लम बताए तो आप उसको मेरे पास लेके आओ, मेरे बारे में बताओ, फिर वो उसकी जर्नी और मेरी जर्नी. देन वी आर जस्ट इंटरमीडिएटर्स, वी आर जस्ट लाइक पोस्टमैन, और हमारा कोई औकात नहीं है. अगर हम ड्यू रिस्पेक्ट टू द पर्सन हु हैज टेकन अस टू गुरुजी, बट पावर इज गुरुजी, शक्ति इज गुरुजी, डायरेक्ट कनेक्शन विद गुरुजी महाराज, not with anybody else. Nobody has that power, nobody has that capacity to take your karma. Only it's Guruji who can do it. So let's Sangaji not depend on any intermediator for messages. अगर कोई messages किसी पे आ भी रहा है गुरुजी का, तो वो गुरुजी की पार है, गुरुजी की शक्ति है. उस आदमी या कुछ उस इंसान में कोई शक्ति नहीं है. गुरुजी कहते थे सब इंसान की जूनी में है और कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता. हमेशा कहते थे लोगों की नेगेटिविटी मत सुनो, सारी तेरी पॉजिटिविटी ले जाएगा और नेगेटिविटी छट जाएगा. उसको मेरे बारे में बताओ, मेरा रास्ता बताओ. So and then that auntie was into chanting, and Guruji stopped her to do chanting, and Guruji said, और उनके घर में गुरुजी का स्थान आया था, जो उनके घर में गौंजाओ जो बड़े, I don't know much about Buddhism chanting because I did all that after I met Guruji. And then she had a beautiful darbar of Guruji in her basement. Now she is an ardent believer of Guruji. Then again, and not Sangatji that Buddhism chanting is wrong, that these are stages of learning and we have to move ahead. मतलब एक क्लास में नहीं हम बैठ सकते, हमें आगे बढ़ना है. वो हमें रास्ता दिखाते हैं, पर अल्टीमेट डेस्टिनेशन इज गुरुजी एंड इट्स महाशिव. क्योंकि कलयुग पीरियड के हिसाब से गुरुजी में ही शक्ति है जो हमें तार जाएगी, जो हमें पार लगा देगी.
देन शिव कह के भी हम गुरु जी को एक छोटे स्थान पे बैठाते हैं। वो महाशिव हैं, इस दुनिया के मालिक हैं। कहते हैं जब उनको मत्था टेकते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में मत्था टेकता है, सारी देवी देवताओं को मत्था टेकता है। तो अगर हम सिर्फ गुरु जी को मत्था टेक लें तो हमें किसी देवी देवता को भी नमस्ते करने की जरूरत नहीं है। और हमेशा गुरु जी ने ब्रह्मों और वहमों से निकाला कि ये नहीं कि हम किसी भगवान को मान रहे हैं तो कोई भगवान हमसे नाराज हो जाएगा, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैव दैट फीलिंग कि हम माता के नवरात्र रख रहे हैं तो हम वो डर के रखते हैं कि सोच के कि ये एक सिस्टम चल रहा है, अगर हम ये रिचुअल नहीं करेंगे तो हमारे साथ कोई डिजास्टर हो जाएगा। जस्ट इमेजिन, क्या माता रानी इतनी बड़ी माँ, इतनी बड़ी माता रानी, क्या वो भगवान के नाराज होने के लिए बैठी है कि अगर हम उनके ऊपर वाले भगवान को याद करें, गुरु जी को याद करें, राधा शील बी हैप्पी दैट यू आर प्रेइंग टू गुरु जी। सो दीज आर सर्टन थिंग्स जो हम लोग वेमो में पढ़ के, गुरु जी ऑलवेज सेड 13 इज द मोस्ट लकी नंबर, दिस बड़ा मंदिर इज ऑन 13 नंबर फार्म हाउस। गुरु जी ने 13 नंबर की गाड़ियां लोगों को खरीदवाई, 13 नंबर के घर लोगों के खरीदवाए। सो बेसिकली गुरु जी ने सब वेमो से निकाला। He used to say, मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। So basically we have to be a good human being. सिर्फ हमें अच्छे कर्म करने हैं, and if we follow that karma theory of Guruji, you have to be a good human being, nothing can affect you. And in Kalyug period, अच्छे का बहुत अच्छा मिलेगा और बुरे का बहुत जल्दी बुरा मिलेगा। So basically we have to be very conscious of the little things we are doing. He used to stress on दान. He used to say दान कितना करो, गुप्त दान करो, गुप्त पाठ करो, किसी का मन मत दिखाओ, किसी को तंग मत करो जिंदगी में। And then he had told, I heard General Kapoor satsang when Guruji had told him to tell verses from Bible, Quran and Bible, Quran and Bhagavad Gita. And he said, "Tu ki janda religion ke bare mein?" And he was numb; he could not say anything. And Guruji said, "All religions are one. God is one. And if you cannot help anybody, at least don't harm anybody. And out of hectic schedules in this materialistic world, take out some time for divinity and spirituality." So basically, Kalyug period mein our prayer system has to be very, very strong. अगर हम चलते फिरते भी भगवान को याद कर सकते हैं, उन्होंने किसी बंधन में नहीं बांधा कि 1 घंटा मेडिटेशन करनी है, 2 घंटा मेडिटेशन करनी है। द वे टू कनेक्ट टू गुरुजी इज टू मेक हिम योर बेस्ट फ्रेंड। ब्रेकफास्ट विद गुरुजी, लंच विद गुरुजी, डिनर विद गुरुजी, आउटिंग विद गुरुजी एंड एवरीथिंग विद गुरुजी। एंड अगर कोई चीज हमारी जिंदगी में नहीं हो रही है तो लेट्स नॉट फील बैड अबाउट इट, क्योंकि गुरुजी उस चीज को होना नहीं चाहते थे। गुरुजी, दैट इज नॉट द राइट टाइम फॉर यू, एंड व्हेन द राइट टाइम विल कम, ही विल ब्लेस यू abundantly। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आपकी किस्मत पलट गई, कैसे आपके because he is cutting your karma. He used to say 90% of your karmas are forgiven in my darbar and 10% you have to bhogo, and then 10% में सबकी हालत खराब हो जाती है। तो वो कहते थे मैं 10% को भी जीरो कर सकता हूँ, पर फिर रब नु कौन याद करेगा। Then Guruji was anti-tantric, because I remember one day in Empire State, there was a lady who had gone to some tantric and Guruji was very, very angry sitting on an asan and scolded Sangat for at least good 45 minutes. And people in the Sangat know कि Guruji बहुत to the point बात करते थे, जिसके लिए जो मैसेज होता था वो उसके लिए होता था, और गुरुजी आगे कुछ बात नहीं करते थे। लेकिन गुरुजी 45 मिनट्स पे ही वाज स्कोल्डिंग एवरीवन एंड सेइंग तांत्रिका को जान दियो, पुट्ठे कर्म कर दियो, फिर मेरे को लान दियो, फिर मैं नहीं कम कर सकता। So basically उन्होंने ये समझाया कि we have to have a very clean and a very straight relationship with him to reach him. And then again, another episode I remember, one of my friend was wearing some gemstone and Guruji said to remove the gemstones. He said मैं कम नहीं कर सकता। तो गुरुजी ने ये छोटी छोटी चीजें हमें सिखाई कि there is no tarot. He used to say, there was an auntie, she was into tarot reading and Guruji stopped her to do tarot. She would see spirits and Guruji said कि तू बंद कर दे, and she did not stop. But जब गुरुजी ने उसको बताया कि उसकी वजह से टैरो करने से उसको नेगेटिव एनर्जी आ रही है, बिकॉज हम इंसान की जूने में है, हमारे पास वो पावर और वो ऑरा नहीं है कि हम किसी को क्योर दे सके या किसी की नेगेटिविटी को हटा सके। तो गुरुजी ने उसको मना किया था। एंड धीरे धीरे जब वो गुरुजी के पास आई, उसने लंगर खाना शुरू करा, देन द क्लेंजिंग स्टार्टेड एंड शी स्टॉप्ड हर टैरो रीडिंग सेशंस। तो गुरुजी ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए भी मना किया था कि ये भी मत कराया करो। देयर वाज एन आंटी, शी वाज इनटू पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड गुरुजी टोल्ड हर टू स्टॉप दैट पास्ट लाइफ रिग्रेशन। ही सेड पुट्ठे काम होंदे ने, तुम इंटरवीन नहीं कर सकते भगवान के कामों में।
And for Amrit Vela satsangs, बहुत अच्छी बात है, people are doing Amrit Velas and people are, doing the Brahm Muhurat ka time, but there are certain medical issues. Some people have uh, health issues. Some people have छोटे बच्चे हैं, सुबह अमृत वेला नहीं उठेंगे तो बेचारे अगले दिन ऑफिस कैसे जाएंगे. So just don't feel guilty about it. Some people have old people in the house, they have to take care of them. तो गुरुजी ने उन वहमों से भी हटाया कि जिस वेले तू अपने गुरु ਨੂੰ याद करे वही अमृत वेला है, वही सेवा है, वही सिमरन है, वही तेरी भक्ति है. And not that Amrit Vela is something bad, but if you can get up in the morning, but don't tax yourself by getting up in the morning and कि हमें उठना है और हमें ध्यान लगाने हैं. No, he never insisted on that. He said, तभी गुरुजी शाम को संगत में बुलाते थे कि तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करो. He says, तुम बच्चों को स्कूल भेज रहे हो, बच्चों को देख रहे हो, अपने माँ प्यो को देख रहे हो, अपने सास ससुर को देख रहे हो, ये सबसे बड़ा पार्ट है. नॉट दैट कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ के मंदिर भाग रहे हैं, सत्संगों में भाग रहे हैं. इट हैज नो मीनिंग. एक आंटी की मदर इन लॉ वाज अनवेल एंड शी केम टू गुरुजी's मंदिर. गुरुजी सेंट हर बैक कि तू अपनी सास को बीमार छोड़ के घर आई है, तेरे को यहाँ आने की जरूरत नहीं है, तू पहले उधर दे. बेसिकली गुरुजी ने हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाई कि सुबह अपना जो हम करते हैं, अपना बच्चों को देखते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, that is basically our duty, not that leaving the duties. Spirituality is something, that is why he called संगत in the evening कि तुम आप फ्री अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से होके आराम से ध्यान लगाओ. और मेडिटेशन भी गुरुजी लंबे टाइम के लिए नहीं लगाते थे, थोड़े टाइम के लिए लगाते थे, फिर वो डांस शुरू हो जाते थे, फिर वो गाना शुरू हो जाता था. देवर सूफी नंबर्स, देवर नसरत फतेह अली खान, एंड देवर so many to lighten the moment. So he used to then laugh, chill with the sangat and enjoy with the sangat, and then he would give agya to everyone. So basically Guruji ne, and this light of divinity jo Guruji ne di, I remember he told me once, he said tu apni sangat likh ke la. And I gave him in a piece of paper. He said, no, not like this. To CD Vichla. And I did not know that light of divinity is going to come and all the satsangs are going to come in light of divinity. But this life of divinity is a Mahagranth. You get all your answers. Agar there is a question in your mind, it is much above even शिव पुराण, क्योंकि ये गुरुजी की हाथ की दी हुई, हाथ की बनाई हुई किताब है जो बाद में पब्लिश हुई थी. जब वो खोलते हैं तो यू गेट ऑल योर आंसर्स, यू गेट ऑल योर यू रीड अ सत्संग and you just enjoy that satsang, you enjoy that moment, you enjoy his blessings. And he used to say शिव पुराण पढ़िया करो. He insisted on that कि तुसी एक अध्याय नहीं पढ़ सकते, तुसी एक पेज पढ़ लो, एक पेज नहीं पढ़ सकते, तुसी 2 लाइना पढ़ लो. दैट विल सेल यू थ्रू द कलयुग पीरियड. संगत जी, दिस इज द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. ज्ञान सबके पास है, पता सबको सब कुछ है, लेकिन जब तक हम अपनी जिंदगी में आज सत्संग सुन के एक चीज ही हम उतार ले अपनी लाइफ में कि हम किसी को हर्ट ना करें, किसी का मन ना दुखाएं. और आप देख लेना कि अगर आपने किसी का दिल नहीं दुखाया और अगले आदमी ने आपका दिल दुखाया, तो गुरुजी और वो अपने आप गुरुजी उसको हैंडल कर लेंगे. लेट अस नॉट मेक आवर कर्मास बैड बाय आंसरिंग, बाय बीइंग आर्गुमेंटेटिव. सो बेसिकली गुरुजी ने हमें दिल से साफ होना सिखाया, दिल से कनेक्ट होना सिखाया है. देन अनदर एपिसोड आई रिमेम्बर कि मैं आगे गुरुजी को मत्था नहीं टेकती झुक के, बिकॉज आई हैव लिटिल वर्टिगो प्रॉब्लम. एंड देन वन संगत टोल्ड मी कि गुरुजी इज सेइंग, सी दीज आर लिटिल टेस्ट्स कि आंटी आगे झुक के मत्था नहीं टेकती. तो आई वाज आस्किंग गुरुजी, आई सेड गुरुजी, मैं तो आपको पता है कि मेरे को इतना बड़ा वर्टिगो की प्रॉब्लम है, अगर मैं आगे झुकूंगी तो मैं चक्कर आता है मेरे को. तो there was a sat, you get all your answers in your Shabad Kirtan, in your satsangs. There was no pravachans given by Guruji. तो गुरुजी ने एकदम से मेरे को अंकल का एक सत्संग सुनवाया, जिसमें एक अंकल बोल रहे थे कि जब उन्होंने हार्ट सर्जरी करवाई थी तो उन्होंने सॉरी बोला था कि गुरुजी मैं आगे आपको झुक के मत्था नहीं टेक सकता. तो गुरुजी से मत्था दिलों टेकदा है. बेसिकली हमें घर दिल से मत्था टेकना है उनको. दिखावे की कोई जरूरत नहीं है कि हम दंडावत प्रणाम कर रहे हैं गुरुजी को. और we basically we have to remember him from inside, अपना best friend बना के. We should not discuss our problems with anyone because nobody can solve our problems except Guruji. They will just say it's a moral support. They will say कि ठीक हो गया, हो जाएगा. बट गुरुजी को ध्यान लगा के अपनी प्रॉब्लम सिर्फ गुरुजी से डिस्कस करो, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है. एंड देन
And what else I can say for the Kalyug period कि please संगत जी implement. This is a time of implementation. ज्ञान बांटना, ज्ञान सुनना बहुत आसान है, लेकिन उसको जिंदगी में उतारना बहुत मुश्किल है. और अगर हम एक चीज भी उतार लें गुरुजी की कही हुई, तो we can sail through the Kalyug period. And then with Guruji, no nazar can affect you, no black magic can affect you, no negative energy can affect you. Just imagine with this thing in your mind that 24/7 you are under the supervision of Mahashiv, Guruji Maharaj, जो इतने बड़े भगवान है, इस ब्रह्मांड के मालिक हैं. You can be in each and every battle of your life. Let the whole world be against you if Guruji is with you. So Guruji is the ultimate power, the ultimate destination in our spiritual journey. There is no God above him. There is no Shakti above him. There is no Bhagwan above him. तकदीर का लेखा जोखा सिर्फ गुरुजी ही बदल सकते हैं. I did not have life after 2005. Today's 2021, 22 is going to be coming. I'm hale and hearty with Guruji's kripa. The little seva he gave me was कि तू सत्संग करया कर. He came in my dream. He said तेरे को तेरी सेवा है सत्संग करना. He knew कि मैं अंदर से मैं फिजिकली इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं मंदिर में जाके मैं बर्तन धो सकूं या झाड़ू लगा सकूं या किसी सत्संग में जाके सेवा कर सकूं. तो गुरुजी ने मेरे को ब्लेस करा, सिर्फ सत्संग सुनाने की सेवा दी, और वो भी सिर्फ गुरुजी जो बुलवाते हैं वही मैं बोलती हूँ. आई रियली डोंट नो व्हाट आई टॉक बिकॉज आई रियली डोंट नो व्हाट कम्स इन योर माइंड. ही इज द स्पोक्स, वो सिर्फ आई एम जस्ट अ स्पोक्समैन. He is talking. He tells me what I have to say. I really don't know what I have to say. मैं कुछ नहीं पढ़ती, कुछ नहीं लिखती, कुछ नहीं मैं अपना ध्यान लगाती. जो गुरुजी बताती हैं उस समय में बस जो मेरे दिमाग में आता है मैं वो बोलती हूँ. एंड गुरुजी ने छोटी छोटी बातें सिखाई कि पहले आई वॉज इगोइस्टिक, आई वॉज आर्ग्यूमेंटेटिव, पर गुरुजी ने सिखाया कि बेऔकात के लोगों ने गुरुजी ने औकात दी. पहले आई यूज्ड टू से मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी कार. नाउ आई नो कि ये सब गुरु का हाथ है मेरे सिर पे, इसीलिए आज ये सब कुछ मेरे पास है. अगर गुरुजी का हाथ मेरे सिर पे नहीं हुआ तो मेरे लिए जो लाइफ भी जिस इंसान के पास नहीं थी, जो सांस मैं लेती हूँ वो मेरे गुरुजी की दी हुई है. तो मैं हमेशा गुरुजी को कहती हूँ कि मैं कुछ गलत ऐसा काम ना कर बैठूं गुरुजी कि आपका भी मन दुखे. और मैं आपके सामने, अगर हम कुछ भी कर रहे हैं इस दुनिया से, हमें किसी को आंसर देने की जरूरत नहीं है. जस्ट अपने मन में एक चीज रखना दैट इन दिस वर्ल्ड यू आर ओनली आंसरेबल टू गुरुजी. और अगर आप उनकी नजरों में ठीक हो तो आप ठीक हो. आपको किसी को क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, किसी को अपनी सच्चाई बयान करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ हमने अपने कर्मों को अच्छा रख के सिर्फ गुरुजी का ध्यान करना है कि ये गुरुजी की आंखों में ये ठीक है तो ठीक है. अगर लोगों ने तो बोलते ही रहना है. गुरुजी हमेशा बोलते थे दुनिया की छड़ परवाह, एंड वो जो चलता था गुरुजी के वहां, दुनिया की छड़ परवाह. एंड हमें दुनिया तो हमेशा बोलती रहेगी. एंड अगेन गुरुजी के यहाँ एक बहुत ब्यूटीफुल शब्द चलता था, तेरी सूरत जो मन में बसी है क्या करूंगा मैं मंदिर शिवालय. सो बेसिकली गुरुजी हमारे अंदर बैठे हुए हैं. मंदिर जाना एक रजीम है टू फॉलो, बिकॉज ही यूज्ड टू से एवरी ब्लेसिंग एन एक्सपायरी डेट. एंड दिस powerful mandir is full of blessings, full of positive vibrations, and wherever he sits the satsangs are full of power because sabki energy saath chal rahi hoti hai. But collective part is the need of the hour. But if we cannot collect in the pandemic period, we can sit at home and pray to him. एंड देन अगेन गुरुजी को नमस्ते का मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि आर्ग्यूमेंटेटिव और उससे कि आई यूज्ड टू पहले फील कि see how practically he teaches you. He's a practical guru. Once I saw Guruji sitting on his asan and blessing 10,000 sangat coming saying namaste to each and every person. और मैं मन में सोच रही हूँ कि मैं क्यों सोचती हूँ कि कोई मुझे आके नमस्ते करे. why can't I go and greet somebody. तो बेसिकली गुरुजी ने ये सिखाया कि ईगो छोड़ो एंड गुरु परिवार के साथ चैरिटी बिगिंस एट होम. अगर किसी को मदद की जरूरत है तो संगत में खड़े हो जाओ एंड जस्ट हेल्प. And I have seen Sangat people helping Sangat people at the time of need. I have seen it myself. There was some tragedy in the Sangat and how Sangat has helped those people. I can't believe it how I got phone calls to help the family, to help the wife, because imagine in शादियां भी गुरुजी ने जो कराई हैं संगत ने आगे आगे
आके लोगों की हेल्प करी है, लोगों ने बिना किसी को बताए हुए संगत साथ खड़ी हुई है। तो संगत हमारा गुरु परिवार है, ये मोती हैं जो हमें इकट्ठे करने हैं और इनको बिखरने नहीं देना। इन सबको हमने इकट्ठा और जोड़ के रखना है विद दिस पावर कि गुरु जी की, हम गुरु जी की संगत हैं और गुरु जी हमारे सबसे बड़े हैं। गुरु जी भगवान तो हैं ही, पर जब हम गुरु जी की शरण में आते हैं तो वो हमारे घर के सबसे बड़े बन जाते हैं। तो we can talk to him, we can speak to him. He's like a father figure. You can share all your feelings with him. And just imagine if 24/7 एक महाशिव की शक्ति आपके साथ है, there'll be no looking back in your life. Then another beautiful shabad used to play. देहे नाम संतोखिया उतरे मन के बुनख बिन गुरजे मंगना सिर दुखाते दुख। तो गुरु जी के अलावा जो भी हम मांगते हैं दुखों के दुख ही मांगते हैं। तो हमारी एक छोटी सी प्रेयर होनी चाहिए, गुरु जी मेरा हाथ मत छोड़ना, बाँ पक्की पकड़ना, क्योंकि मेरा फेथ बहुत हिलता है और छोटा सी भी प्रॉब्लम आएगी तो हम गुरु जी को बोलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन पता नहीं कि गुरु जी कितनी बड़ी प्रॉब्लम को छोटा कर रहे हैं और हमारे कितना वो कर्म काट रहे हैं, हमारे जन्मों जन्मों की पंड जो हमने इकट्ठी करी हुई है अपने बैड कर्मास की। कहते थे तुम भांडा इतना मैला करके आती हो, फिर मैं हर हफ्ते साफ करता हूँ, फिर उस मैले में तुम गंद भर के लाते हो, फिर मैं साफ करता हूँ। तो बेसिकली दिस इज अ प्लेस ऑफ सोल प्योरिफिकेशन। दिस इज अ प्लेस वेयर गुरु जी प्योरिफाइज योर सोल। गुरु जी इतने बड़े भगवान है कि आपको मोक्ष भी दे सकते हैं। उनको पता है कि क्या हमें करना है जिंदगी में, क्या करना है। वी शुड नॉट इवन आस्क फॉर एनीथिंग। एंड सिर्फ एक छोटी सी प्रेयर कि गुरु जी हमें छोड़ना मत। एंड जस्ट इमेजिन हम लोगों के पास तो गुरु जी हैं, लॉट ऑफ पीपल डोंट इवन हैव गुरु जी विद देम, बट संगत जी आई कैन वाउच फॉर इट दैट देयर इज एन, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है, रेन है, स्टॉर्म है, बट एक छतरी है, एक अम्ब्रेला, एक रेनकोट है जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। So we will all sail through the Kalyug period with just keeping Guruji in our mind. And he is the greatest God of the universe. There is no God above him. There is no Shakti above him. There is no power above him. And बस छोटा सा प्रेयर है कि गुरुजी प्लीज हमारा साथ मत छोड़ना, क्योंकि हम गुरुजी के बिना नहीं रह सकते। एंड जस्ट इमेजिन आप आज सत्संग के बाद व्हाटएवर आफ्टर योर मेडिटेशन, आफ्टर योर प्रेयर, अपना दिमाग खाली कर दो और देखना गुरुजी आपके दिमाग में, आपके दिल में आके बैठ जाएंगे। और जब अपना आप दिमाग खाली हो जाएगा ना, एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव इन योर लाइफ, नथिंग विल गो रॉन्ग इन योर लाइफ, नथिंग विल अफेक्ट यू, एंड यू विल गेट दैट स्ट्रेंथ, दैट पावर, दैट ऑरा जो आपके साथ 24 घंटे साथ होता है। with and just what we have in our chota sa prayer, gratitude, 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 thank you, thank you, and thank you, and that's all. And see how gratitude works. And जब gratitude होगा ना दिल में, तो चीजें अपने आप जगह पे आती जाएंगी, क्योंकि गुरु जी ने हमें इतना दिया है कि हम लोग, हमारी औकात नहीं है हमारी, लेकिन उन्होंने हमारी इतनी झोलियां भरी हैं। सबसे बड़ी बात तो उन्होंने जिंदगी दी है, अगर ये जिंदगी नहीं होती तो हम रुले ही होते। एंड ये जो शब्द गुरुजी ने बनवाया था सदा आंटी से, जे तू ना फरदा सा देबा असारुल जाना सी, सच्ची में आज गुरुजी ने अगर हमारा हाथ ना पकड़ा होता तो हम दुनिया में भटक जाते, भटक क्या जाते, हम इस दुनिया में ही ना होते। सो जय गुरुजी एंड थैंक यू संगत जी फॉर गिविंग योर स्पेशल मोमेंट्स एंड टाइम। And next again, if I get an opportunity, because this is a seva given to me by my Guruji, और ये सेवा तो मुझे करते ही रहना है, because this is my medicine, this is my power, what he has given me, जो और उन्होंने मुझे दिया, जो blessings उन्होंने मुझे दी, जो positivity मैं आज बोल रही हूँ, वो सब उन्हीं की देन है। And he's made me a better person, and I really don't know how to thank him. And we संगत आपसे बहुत प्यार करती है गुरुजी। We all love you from the deep down of our heart, and love to Guru Parivar of Guruji, and love to the entire Parivar of Guruji. And thanks to the multilingual group, I would little try to mention it. I really have not got an idea of what this group works on, but today I got a message that they are doing readings of Shiv Puran, then they are doing Light of Divinity in different languages. So beautiful platform is in front of all of us, and आज वचन्स भी शुरू हो गए गुरुजी के. So all thanks to people who have contributed and come forward with such a beautiful feeling कि
हम ये करें, and this is again given by Guruji to them. This is a blessing which Guru Maharaj has given to them. Maybe they are mediums, but all due respect to everyone who has come forward and taken out time during this time of pandemic in different languages and coming forward and helping out people, sitting at home listening to his satsangs. What beautiful can be listening to the Shiv Puran, listening to Light of Divinity. Imagine such beautiful effort done by the Sangat, and this is how they have got their blessings, and Guruji is blessing them. And I hope the group goes on and on with Guruji's blessings, and really thanks to the people who have organized it with so much of effort and taking out their time out of their hectic schedules in this time of pandemic. So it's so beautiful, so beautiful. I really cannot thank people who have come forward for this. Thank you to Guruji, and thank you to this multilingual group. Shukrana Guruji Maharaj ka. And uncle, of course, I'll come again whenever Guruji gives me an opportunity. जय Jai गुरु जी, Guruji, and thank you. जय गुरु जी। शालिनी आंटी, शालिनी आंटी, सबसे हाँ पहले जी, तो हाँ जी अंकल। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज जी का कि आपके माध्यम से आज बहुत ही मैसेजेस मिले हैं गुरु परिवार को। हाँ जी। Most of the Guru Parivar members must have received some messages through your different versions of your satsang sharing. Yeah. And besides, as Guruji have ordered us, you are in for sharing satsang every second month during the year. Okay, good. Thank you, uncle. Thank तो you for giving me an opportunity. हर 2 महीने के बाद आपसे रिक्वेस्ट की जाएगी, आपको आमंत्रण दिया देखो जाएगा। अंकल, आप ना no uncle, firstly there should not be any request, this should be an order. You are doing आपने ये गलत word use करा, request. Please order me to do I take my satsang. word back. I take my word back. Yeah, yeah. आपको हम इनवाइट करेंगे एवरी सेकंड हाँ. मंथ सत्संग शेयरिंग करने के लिए। और Sure uncle, anytime. और आंटी अगर आप अलाउ करें तो कुछ संगत जी क्वेश्चंस, some people have हाँ, some जरूर questions. जरूर Is जरूर, there- definitely uncle, definitely Okay, yeah, okay, okay, I'm up for हाँ okay. जी. Sakshi aunty, over to you. You may please ask the sangat for raising hands. Jai Guruji. Sangatji, if anybody would like to ask anything, they can raise their hands, please. Mahi ji, I have unmuted you. आप please अपना. जय गुरु जी साथ संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। हाँ जी, जय शुक्राना गुरुजी आंटी। हाँ जी आंटी, मेरा एक क्वेश्चन था आंटी जी। आज ही एक संगत जो अंकल जी हैं, उन्होंने, मैं गुरु जी के साथ, मतलब मेरा रिलेशन गुरु जी के साथ फादर है, मेरे फादर है, हाँ मेरे जी। फादर, मैंने गुरु जी को हमेशा से फादर माना है। और जैसे आप बोल रहे थे, बहुत प्यारा सत्संग आंटी जी, बहुत सारे आंसर्स मिले, बहुत दिल को तसल्ली मिली, बहुत ज्यादा। तो आंटी जी मेरे से क्वेश्चन था, आज एक अंकल जी ने मुझे बोला था कि मैं अपने पापा मानती हूँ गुरु जी को, तो मैं कभी कभी ना गुरु जी से लव सॉन्ग में वीडियोस बना लेती हूँ, डांस करती हूँ गुरु जी के साथ में खड़े होके। तो वो मेरे से कहते हैं कि ना आप इन लव सॉन्ग को ना यूज मत किया करो गुरु जी के सामने। तो आंटी जी हाँ। मुझे प्लीज आंसर दो कि ऐसे गुरु जी कहते थे कि बच्चे लव सॉन्ग वाला गाना नहीं चलाएंगे मेरे सामने, या फिर सिर्फ शब्द ही यूज होने चाहिए, ऐसा भी कुछ देखो था आंटी, आंटी जी। आंटी देखो, नहीं मैं आपको बताती हूँ, गुरुजी ने देखो किसी रिचुअलिज्म में नहीं बांधा था। हर इंसान का अपना भगवान को प्यार करने का तरीका है, ठीक है ना, चाहे हम उनके सॉन्ग के थ्रू करें या हम उसको शब्द कीर्तन के थ्रू करें। लेकिन बेटा एक डिसिप्लिन है कि शब्द कीर्तन गुरुजी 2 घंटे के लिए चलाते थे। अगर आपका ये पर्सनल रैपो है गुरुजी के साथ, एक पर्सनल प्यार है, तो आप एक काम करो कि जब आपको ये मन से करना है तो आप अपना घर बैठ के करो, आप उसको वीडियोस को शेयर मत करो ना। Don't share the video so that people say anything. This is your personal relationship with Guruji and you. It's between you and Guruji. See, I connect to Guruji with all the love songs. Not that he's अब कोई भी गाना आएगा तो वो
हेलो, सॉरी. Yes, Aunty, you are audible. Over to Guruji ki Satto, Aunty. हेलो, जय गुरुजी. जय गुरुजी, Aunty. अंकल सुन पा रहे हैं? Yes, Aunty, you are audible. Okay, fine. So the thing is that this is your personal relationship with Guruji. भगवान का किसी के साथ अपना अपना रिश्ता है, तो हम किसी को मना नहीं कर सकते कि वो डांस ना करे, वो गाना ना गा सके, बट ये एक पर्सनल प्यार है. हाँ ठीक है, गुरुजी 2 घंटे शब्द कीर्तन चलाते थे, एक डिसिप्लिन था, एक डेकोरम था, लेकिन ये आपका पर्सनल प्यार और एक भाव है. गुरुजी तो एक फूल से भी खुश हो जाते हैं, तो आपको बुरा कर मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बेटा. यू कैन लव द वे यू वांट टू लव योर गॉड. देयर इज नो रिचुअल टू इट, बट ऑफ कोर्स आप उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मत डालो, क्योंकि सबके अपने अपने तरीके हैं भगवान को याद करने के. ठीक है ना? पब्लिक फोरम पे मत डालो. आपको अपने घर में जैसे डांस करना है, गुरुजी के आगे गाने गाने हैं, गुरुजी के आगे जैसे भी आपको प्यार करना है, आप गुरुजी को, आपका प्यार करने का अपना तरीका है. ठीक है ना? तो भगवान को प्यार करने को कोई सिस्टम या कोई बंधन नहीं होता. कोई भी प्यार करने का किसी को कोई बंधन नहीं होता. क्या ही अपने हस्बैंड को प्यार करते हैं, हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं तो सोच के प्यार थोड़ा ना करते हैं. तो गुरुजी को हम इतना अंदर से प्यार करते हैं, तो सोच के नहीं प्यार करना. अपना तरीका है, डांस करो, नाचो, गाओ, पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मत डालो. ठीक है ना?